होती हैं एंड आई ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड द प्रेसर, उस पर हमें ज़रूर फीडबैक दें और अगर उसमें कोई हमें एक्सेलरेशन चाहिए, आपकी कोई उसमें एडवाइस होगी तो वो हम ज़रूर ऑन बोर्ड लेंगे because no one has the final word on wisdom. But from our perspective, over the last 1.5 years, we have been in the implementation mode, whether it's taxation, energy, SOEs, privatization. On the public finance side, we talked about right sizing, pension reforms and debt servicing. और मैं इसमें सिर्फ 2 मिनट लूँगा बिकॉज टैक्सेशन की हमेशा बात होती है एंड इट्स ऑल वी इंक्रीज द रेवेन्यू बेस और उसमें इस वी डन दैट बाय थ्रू डीपनिंग एंड वाइडनिंग और डीपनिंग ये है कि ऑल दो सेक्टर्स वेयर वी हैव हैड लीकेजेस और लीकेजेस को इज़ एन यूफेमिज्म क्वाइट फ्रैंकली फॉर करप्शन एंड चोरी, उसके अलावा और कुछ नहीं बात हो सकती. Those we call leakages, and that's where the role of technology comes in, where AI-led CRM, AI-led invoicing, AI-led monitoring, जहाँ हमें sales tax, whether it's the sugar sector, whether it's the cement sector, ये tobacco में हम लेके जा रहे हैं, इसको beverages में लेकर जा रहे हैं, और हमने परसों ये बड़े वो जो numbers हैं वो विजिबली प्रेशर में बताए हैं कि ये ऐसी बात नहीं है कि हमको हवा में बात कर रहे हैं. दिस इज़ वेयर द इंडस्ट्रीज हैव ऑलरेडी पेड अप बिकॉज दे रिकग्नाइज्ड दैट दिस इज़ व्हाट दे ओड टू द गवर्नमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी कैप्चर्ड. 9 लाख न्यू फाइलर्स आए हैं एंड दैट्स वेयर द वाइडनिंग पार्ट sort of comes in as well. And this transformation is going on in terms of people, process, technology. And couple of weeks back when we were in Washington, तो हमें वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जो इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है FBR के सिलसिले में, आप आके उसकी केस स्टडी बयान कीजिए. एंड वी डिड, एंड आई कैन टेल यू दैट द इजिप्शियन, उसमें कई फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, द इजिप्शियन फाइनेंस मिनिस्टर वॉकड अप टू मी एंड सेड कि जी हम यही इस किस्म की इस्लाहात इजिप्ट में लाना चाहते हैं, तो या मैं अपनी टीम यहाँ भेजूँगा या आप अपनी टीम हमें यहाँ भेज दें. तो देखें ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम बात तो बहुत कर सकते हैं कि जी इस्लाहात हैं कि नहीं है. इफ़ दीज आर गेटिंग रिकग्निशन और उसमें ऐसे क्या जहाँ भी कमी बेशी है उस पर ज़रूर हमें हमारी आप इस्लाह कीजिए एंड वी वुड वांट टू टेक इट फॉरवर्ड. बट देयर इज़ रिकग्निशन कमिंग थ्रू. एनर्जी साइड पे, ऑन द पावर साइड आई थिंक वी आर ऑन आवर वे. ऑन द पेट्रोलियम साइड वी स्टिल हैव वर्क कट आउट. SOEs में जो रिफॉर्म्स हुई हैं और प्राइवेटाइजेशन, that's one agenda where we did not do well. Privatization side पे जो हमारा ख्याल था कि हम पिछले साल कुछ assets को will be able to privatize, we could not. I thought कि मोहम्मद अली साहब आज होंगे, लेकिन I think उनकी कोई flight का issue हुआ. But he went into a lot of detail in the presser on Monday in terms of where we are with respect to the 24 SOEs which are now at the Privatization Commission. So your first asset here which has been privatized, which is a small bank, but it's been acquired by one of the largest conglomerates in UAE, and they have very big plans about what they want to do with the footprint and, more importantly, the digital agenda of that bank. So it's not about that $14.5 million जो आ रहे हैं, उसके बाद जो $multi-million की investment है, that is more important. The way we have seen with Mashriq Digital and the investment that's been made there. PIA की privatization, we are very hopeful कि inshallah before the year is out, we will see that through the finishing line. 3 discos हैं जिसकी उन्होंने बात की, जहाँ Alvarez and Marcel is the sell-side advisor, and how we are sort of taking that forward. हमने वहाँ बात की right sizing of the federal government. मैं यहाँ इस फोरम पे शायद पहले भी बात कर चुका हूँ कि I have a lot of time and respect for Dr. Ishrat, and in one of the previous administrations I think he did a fantastic job in terms of analyzing कि ये जो various ministries and attached departments क्या करना है. तो अगर आपने वो प्रेशर देखा है तो we have already actioned 39 ministries हैं, more than 400 attached departments, and about 70% of the work is done in terms of merging the ministries, in terms of some of the departments which are being closed. किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, but the point is कि Utility Services Corporation is closed.
दे रहे हैं जिस तरह एक मुनासिब तरीके से प्राइवेट सेक्टर में सेपरेशन की जाती है. It's actually the subsidy and the corruption associated with that subsidy which is the real cost to the exchequer. And that's why what we're doing, and we will inshallah continue to do that, so that हम इसको प्राइवेट सेक्टर के इसके हवाले करते जाएं. पेंशन रिफॉर्म्स की बात होती है तो आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर नाउ ऑन टू अ कंट्रीब्यूटरी स्कीम. तकरीबन 8,000 हमारे जो नए गवर्नमेंट के हमारे कॉलीग्स ने ज्वाइन किया है. नाउ दे आर ऑन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन. तो जो स्टॉक है वी स्टिल हैव एन इशू, बट एटलीस्ट वी हैव स्टॉप द ब्लीडिंग इन टर्म्स ऑफ हाउ वी टेक थिंग्स फॉरवर्ड. एंड ऑन द डेट सर्विसिंग साइड देखें, ये सिंगल लार्जेस्ट एक्सपेंस आइटम है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. तो पॉलिसी रेट नीचे आ रहा है, उससे डेट सर्विसिंग की कॉस्ट कम हो रही है. लेकिन आई एम वेरी क्लियर विद आवर डेट मैनेजमेंट ऑफिस, और ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, मैंने पेशावर में भी की थी. व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ टू क्रिएट एन अल्फा. अगर पॉलिसी रेट नीचे आ जाए और उतना ही डेट सर्विसिंग नीचे हो जाए तो फिर ना मेरी की ज़रूरत है ना डेट मैनेजमेंट ऑफिस की ज़रूरत है. वो तो ऑटोमेटिक उसका एक सिस्टम है इन टर्म्स ऑफ द वाटरफॉल. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ टू डू लायबिलिटी मैनेजमेंट ट्रेड्स इन टर्म्स ऑफ द डोमेस्टिक डेट, ताकि जो भी हम बचा सकें, every million and every billion counts. Whatever we bring in, to bring it into our contingency funds or move it to other social sectors. तो इसमें अब असफर साहब जो आपकी टॉपिक है आज की इस कॉन्फ्रेंस का, मैं उस पर आऊँगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज फार एज द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आर कंसर्न, वी एब्सोल्युटली नीड टू स्टे द कोर्स. दिस बड़ा कंसिस्टेंट मैसेजेस हैं. Internally, bilateral partners, multilateral partners, we need to stay the course. लेकिन जहाँ हमें कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है, और वो कोर्स करेक्शन की ज़रूरत अभी डॉक्टर मुसद्दक साहब ने बात की है और मैं उस पर ज़रूर बात करूँगा. There are two areas which I continue to call existential threats for Pakistan: population and climate change. और इसमें दोनों चीज़ों पे द रियल सेंस ऑफ अर्जेंसी, पॉपुलेशन की मैं हर जगह बात करता हूँ, इज़ नॉट ओनली द 2.5% नंबर विच इज़ अ हेडलाइन नंबर. हम जितनी भी ग्रोथ कर लें, अगर 2.5% ही हमारी ग्रोथ रही पॉपुलेशन की, in real terms we are not going to get there where we want to get to 2047 inshallah when we get to be 100 years. और उसका जो डेरिवेटिव्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. चाइल्ड स्टंटिंग, learning poverty, which is really girls out of school. Those are the real issues which we need to fix, and fix now. We are absolutely very clear, I am very clear, कि जो population वाला है ये in one form, shape or the other, we need to address this issue now. And the second thing is जो डॉक्टर साहब खुद उसको लीड कर रहे हैं, climate change. और इसमें ज़रूर ये बात होती है कि हमारे पास फाइनेंसिंग है और ये हमारे साथ कितना बुरा सलूक हो रहा है कि हम एमिशंस नहीं करते, एडेप्टेशन की हमें चाहिए. लेकिन मेरी हमेशा एक गुजारिश रही है सबके साथ कि जो है उसको तो इस्तेमाल करें. अगर कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क वर्ल्ड बैंक का हमें $2 बिलियन का एक पैकेज मिला है, 1/3 ऑफ विच इज़ अवेलेबल ऑन क्लाइमेट चेंज, वेल देन लेट्स यूज़ इट अप. और डॉक्टर साहब इज़ वर्किंग ऑन अ 100-day प्लान विद द प्राइम मिनिस्टर टू ब्रिंग दैट सेंस ऑफ अर्जेंसी as to how we, how we take this forward. So I think from our perspective, in terms of structural reforms, we very much want to stay the course. And in these two areas, we absolutely need course correction, bring a sense of urgency, and we look forward to getting your feedback, your views, your ideas as you deliberate on a number of these topics over the next couple of days. Once again, I'm very grateful for the kind invitation by the organizers. It's always a pleasure to be here. Thank you, Ji. औरंगज़ेब तकरीब से ख़िताब कर रहे थे. उनका कहना था कि हमारी इस वक्त तवज्जो न्यू इकॉनमी पर है. पाकिस्तान की मईशत भी दुरुस्त सम्त पर गामज़न है. आलमी रेटिंग एजेंसी ने भी पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करार दे दिया. करप्शन और चोरी के ख़िलाफ़ इक़दाम किए जाएंगे. आपको बताएं कि डिजिटलाइजेशन के निज़ाम को भी लाया जाएगा, इसकी बहुत ज़रूरत है. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बालाई इलाकों में बारिश और बर्फ़बारी से सर्दी में इजाफा हो गया. मैदानी इलाकों में भी ठंडी हवाएं चलने लगीं. हज़ारा डिवीज़न